नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कर्नाटका में विधानसभा सत्र के ठीक पहले एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण पर हजारों करोड़ रुपए की भूमि के बदले भूमि आवंटन के मामले में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी जमीन के बदले जमीन पाने वाली लाभार्थियों में से एक हैं, जिन्हें अवैध रूप से जमीन आवंटित किए जाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर के बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र भी इस पूरी नेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो है वो कर्नाटका की सड़कों पर सीएम सिद्धरमैया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो मुडा स्कैम है इसका सीबीआई जांच करवाया जाए और साथ ही सीएम सिद्धरमैया को अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। यानी कि बीजेपी सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है, साथ ही मुदा स्कैम को लेकर के सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विजेंद्र, जो कि बीजेपी नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया, वो भी सुनिए। बड़ा घोटाला हुआ है कर्नाटक में, मैसूर में, मूडा मैसूर अभिवृद्धि प्राधिकार में। इतना साइट जो दलित को देना चाहिए था, जो अलॉटमेंट ऑफ साइट दलित को देना था, गरीबों को देना था, ये साइट किसानों को देना चाहिए था। इस सरकार ने पूरा ये जो निवेशन खाली था उसको खुद सीएम फैमिली को दिया है, वो पॉलिटिकल फॉलोअर्स को दिया है। कैनॉट बी एसआईटी प्रोब हेडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बीजेपी इज डिमांडिंग दैट चीफ मिनिस्टर should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in the scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. He can't take shelter under the name of backward class. He can't take shelter. So Chief Minister I demand Chief Minister, he should hand over the resignation immediately. Not only CM's family, along with CM's family, many ministers and their relatives are also involved in this scandal. And it's not a chota mota nahi hai. It's more than 5,000 crores worth scandal. So Chief Minister, he can't escape from the responsibility. Being a Chief Minister of the state, he is bound to answer the people of Karnataka. He is bound to answer the people of Karnataka. We demand that he should hand over the investigation to CBI. Chief Minister Siddaramaiah ji, even though your sites was allotted during BJP's tenure, Siddaramaiah ji was not an ordinary person. He was holding a constitutional post. He was the leader of opposition. He was a former chief minister. His son was a MLA from Varna Assembly constituency, and his son, he was a member of the MUDA also, Mysore Urban Development Authority. So he can't, he has to take up the responsibility. See, these sites that are supposed to be given to poor people, and the real landlords and farmers who have lost their land, they have been cheated. They have been cheated. This government has utilized all its power to give the sites to CM's family and their relatives and their political followers. So, such a big scam, never in the history of Karnataka and also in Muda history. So, BJP is demanding CBI inquiry, nothing less than CBI inquiry, because no, you can't expect fair investigation by SIT. So, it's a mockery of democracy. It's a mockery of democracy. Siddaramaiah can't stop BJP from protesting against this scandal. We are bound to protest. It is our responsibility. Being in the opposition party, it's our duty to take this scandal before the people of Karnataka. So CM is forcefully trying to stop us, but nothing can stop us. We will march towards Mysore. आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके कांग्रेस सरकार और सीएम
सिद्धारमैया के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जो मुंडा स्कैम बड़े लेवल पर हुआ है उसकी वजह से सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि ये कांग्रेस सरकार के खटाखट लूट का एक मॉडल है जो कि कर्नाटका में देखने को मिल रहा है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। कर्नाटका कांग्रेस सरकार की खटाखट लूट का एक और प्रमाण सामने आया है। पहले वाल्मीकि ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का घोटाला, जिसमें लगभग 180 करोड़ का घोटाला था, जिसमें एक अफसर ने नेता का और मंत्री का नाम लिया था और सुसाइड किया था। उसमें अब ईडी की कार्रवाई भी चल रही है, उसमें भी बेशर्मी से कांग्रेस ने बचाव किया। अब मूडा स्कैम, और इस मूडा स्कैम में एक बात स्पष्ट है, कर्नाटका का सबसे बड़ा घोटाला है, 5,000 करोड़ का घोटाला। और इस घोटाले में कर्नाटका कांग्रेस के प्रथम परिवार और सीएम के परिवार की संलिप्तता भी है, इन्वॉल्वमेंट भी है। किस प्रकार से हजारों गरीब एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग जिन्होंने अपनी जमीन दे दी थी, उनको तो मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई जमीन नहीं मिली, परंतु कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर की पत्नी को एक आलीशान प्रॉपर्टी जमीन दी जाती है, वो भी 14 उनको बार जमीनें दी जाती है। जिस प्रकार से एक करीबी को 42 बार जमीनें दी जाती है, इन जमीनों की कीमत करोड़ों में है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री इसके बारे में ब्यौरा 2013 के हलफनामे में नहीं देते हैं। ये जमीन मिली भी कैसे, उस पर भी कई सारे संदेह और सवाल खड़े होते हैं कि कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर इस जमीन को पहले लिया गया था, जिस गांव में लिया गया था, और उसके बदले उनको प्राइम प्रॉपर्टी मिली। तो ये सारे सवाल जब निर्माण होते हैं और ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन है, तो इसमें सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, परंतु कर्नाटका पुलिस का इस्तेमाल करके वो प्रदर्शनकारियों को जो है वो उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आज राहुल गांधी जी से सवाल है कि यदि इसमें कोई घोटाला नहीं है तो सीबीआई जांच होने दीजिए। आप तो बड़ा नॉर्थ साउथ कर रहे थे। वाल्मीकि समुदाय के पैसों को लूट लिया गया है, बताइए कि ट्राइबल्स के पैसों को लूट लिया गया है, एससी एसटी के पैसों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। जनता के ऊपर कितना बोझ बढ़ाया गया, पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध का दाम बढ़ाकर। एक तरफ लूट जनता की और एक तरफ तिजोरियों से लूट हो रही है, और ये मूडा स्कैम उसी का है। सिद्धरमैया जी को इस्तीफा भी देना चाहिए और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जहां बीजेपी के नेता इस पूरे मामले में हमलावर है, तो देखने को मिल रहा है कि राज्य के डिप्टी सीएम और कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि इस तरीके का कोई भी स्कैम कर्नाटका में नहीं हुआ। सुनिए डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं। Whatever money we are spending to the same community people. We have made a law in this state that this percentage of money we are going to spend to the concerned this one. So in whatever 38 crores or 33 crores or 28 crores, whatever is there, we brought a law in this. First time Andhra Pradesh had brought it. Second time we have brought it, and we are giving to those same section of the society. What's wrong in it? There is nothing wrong in it. So Basuraj Reddy claims that there is a transfer racket in the state of Karnataka, sir. There is a business which has been done in the transferring of the officials. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೀಟು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 9 ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ, 1 ಸೀಟಿಂದ 9 ಸೀಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 14-15 ಸೀಟು ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಕಳಿಸಿದಿಲ್ಲ, ಎಐಸಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ತಂಡ ಕಳಿಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಂಚಿತರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು 4 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಏನು ಎತ್ತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. JDS ಅಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವೋಟು, ಆಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಆಗಿರಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸಿದ್ಧತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದಾಳಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ SIT ಅವರೆಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ED ಅವರು CBIನವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. EDಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. EDಗೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. NR ರಮೇಶ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. NR ರಮೇಶ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ED ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನೇ SIT ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಸಿಗ್ನೇಚರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ED ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि पार्वती की 3 एकड़ जमीन मैसूर जिले के किसारे गांव में थी, तो मुडा ने इस जमीन के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के तौर पर विजयनगर में जो जमीन दी वो पॉश इलाका है, इसलिए इसका बाजार मूल्य मैसूर जिले के किसारे गांव की तुलना में कहीं अधिक है। यही विवाद का मुख्य मुद्दा है जो कई सवाल खड़े करता है। हालांकि मुआवजा के तौर पर जमीन आवंटन की पूरी प्रक्रिया साल 2021 में पूरी हुई और उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विवादों में हैं। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन के बदले जमीन आवंटन में घोटाला किया गया है। यह पूरा विवाद 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। हालांकि सिद्धारमैया ने यह दावा किया है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा ने उनकी पत्नी को अवैध रूप से जमीन अधिग्रहित कर ली थी। सिद्धारमैया का कहना था कि उनकी पत्नी मुआवजे की हकदार थी, इसलिए उन्हें जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी गई है। अगर बीजेपी को लगता है कि हमें दी गई जमीन ज्यादा महंगी है तो वह जमीन वापस ले ली जाए और हमें हमारा हक दे दिया जाए। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के किसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने ही उन्हें गिफ्ट की थी। इस जमीन को मुडा के विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था और इस जमीन के बदले पार्वती को साल 2021 में विजयनगर क्षेत्र में कुल 38,283 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए थे। ये प्लॉट दक्षिण मैसूर के एक प्रमुख इलाके में है। आरोप है कि विजयनगर के प्लॉट का बाजार मूल्य किसारे में उनकी मूल जमीन से कहीं अधिक है, जिसके कारण बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाया है। पार्वती को यह जमीन पूर्ववर्ती बीजेपी शासन के दौरान आवंटित की गई थी, लेकिन फिलहाल देखने को मिल रहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के सड़कों पर उतरी है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर एक के बाद एक कई सारे आरोप लग रहे हैं। जहां मुडा स्कैम को लेकर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी है और सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कर्नाटका की सरकार पर यह भी आरोप लगे हैं कि कैसे जो ST-SC आयोग की ओर से पैसे भेजे जाते हैं उसका इस्तेमाल जो है कर्नाटका सरकार चुनावों के दौरान जो वादे किए गए थे उसके पूर्ति के लिए खर्च करने जा रही है, उसको लेकर के फैसला ली है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के ST-SC आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है कर्नाटका सरकार से कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो खैर कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस वक्त कर्नाटका में कांग्रेस सरकार घिरी हुई है और अब बीजेपी सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।